ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 3, entitled as Krishna is the source of all incarnation, and the text number 44. तत्र कीर्तयतो विप्रा तत्र कीर्ततो विप्रा विप्रर्षैर्भूरि तेजसः विप्रशैर्भूरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टतत् अनुग्रहः निविष्टस्तत् अनुग्रहः सोऽहं वशावयिष्यामि सोऽहं श्रावयिष्यामि यथारीतं यथामति यथातीतं यथामति। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai. Translation. O learned Brahmana, when Shukadeva Goswami recited Bhagavatam there in the presence of Emperor Parikshit, I heard him with rapt attention, and thus by his mercy I learned the Bhagavatam from that great and powerful sage. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. But one can certainly see directly the presence of Lord Krishna in the passage of Bhagavatam if one has heard it from a self-realized great soul like Shukadeva Goswami. One cannot, however, learn Bhagavatam from a bogus hired reciter whose aim of life is to earn some money out of such recitation and employ the earning in sex indulgence. No one can learn Srimad Bhagavatam who is associated with persons engaged in sex life. That is the secret of learning Bhagavatam. Nor can one learn Bhagavatam from one who interprets the text by his mundane scholarship. One has to learn Bhagavatam from the representative of Shukadeva Goswami and no one else. If one at all wants to see Lord Krishna, Shri Krishna in the pages, that is the process and there is no alternative. Sutta Goswami is a bona fide representative of Shukadeva Goswami because he wants to present a message which is received from the great learned Brahmana. Shukadeva Goswami presented Bhagavatam as he heard it from the great father, and so also Sutta Goswami is presenting Bhagavatam as he heard it from Shukadeva Goswami. Simple hearing is not all. One must realize the text with proper attention. The word Nivishta means the Sutta Goswami drank the juice of Bhagavatam through his ears. That is the real process of receiving Bhagavatam. One should hear with rapt attention from the real person, and then he at once realized the presence of Lord Krishna in every page. The secret of knowing Bhagavatam is mentioned here. No one can give rapt attention who is not pure in mind. No one can be pure in mind who is not pure in action. No one can be pure in action who is not pure in eating, sleeping, fearing and waiting. But somehow or other, if someone hears with rapt attention from the right person, at the very beginning, one can absurdly see Lord Shri Krishna in the person, in the pages of Bhagavatam. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the first canto, third chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Krishna is the source of all incarnation. Hare Krishna. तो मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस गौरव अगस्त श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय से 44 नंबर का श्लोक देख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य विशेषता ये श्लोक में जो लिखा गया है बहुत ही पावरफुल है। श्रील प्रभुपाद ने लिखा हुआ हर एक वाक्य बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। विशेषता कोई भी भक्त श्रीमद् भागवतम के प्रति रुचि रखता है, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहता है, अध्ययन करना चाहता है, तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन सूचनाएं लिखी हुई। अगर ये सूचनाओं का पालन हम अपने जीवन में करने की कोशिश अगर करते हैं
तो हमारे लिए श्रीमद् भागवतम का स्टडी, अध्ययन, श्रीमद् भागवतम को समझना, विशेषतः श्रीमद् भागवतम के हर एक पेज के ऊपर, हर एक पन्ने के ऊपर भगवान का प्रेजेंस फील करना बहुत आसान होगा। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो कोई भी भक्त मुझे जिस किसी पद्धति से अप्रोच करता है या मेरे सामने आता है, जिस भावना से आता है, मैं उसी पद्धति से उस व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करता हूँ। जैसे कि पूतना भले ही कालकूट जहर लगा के अपने स्तन के ऊपर कृष्ण के सामने आई थी, परंतु वो माता के स्वरूप में आई थी और कृष्ण को देखने के बाद उनको हृदय के अंदर माता का भाव एक क्षण भर के लिए क्यों ना हो जागृत हो गया था। तो कृष्ण ने उनके साथ आदान प्रदान करते हुए उसी पद्धति से उनको आध्यात्मिक जगत में माता या धात्री का स्वरूप प्रदान किया। तो उसी पद्धति से कृष्ण बोलते हैं, कोई भी भक्त मुझे जिस पद्धति से आएगा, अप्रोच करेगा, उसी पद्धति से मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम हमने पिछली कक्षा में देखा हुआ था। श्रीमद् भागवतम ये कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण का ग्रंथ अवतार माना जाता है। तो अगर श्रीमद् भागवतम को भी हम जिस पद्धति से या जिस मानसिकता से अप्रोच करते हैं, उसी तरीके से, उसी पद्धति से श्रीमद् भागवतम हमारे साथ आदान प्रदान करता है। तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखा है कि अगर किसी भी भक्त को अपने जीवन में श्रीमद् भागवतम के हर एक पेज के ऊपर कृष्ण को देखना है, कृष्ण का साक्षात्कार पाना है, या उसको रियलाइज करना है कि ये साक्षात कृष्ण मुझे ये बता रहे हैं, तो उसको श्रीमद् भागवतम जो सुनना है, उस भक्त को शुकदेव गोस्वामी के रिप्रेजेंटेटिव से सुनना पड़ेगा। शुकदेव गोस्वामी के जो रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलते हैं, प्रतीक है, या फिर शुकदेव गोस्वामी के परंपरा में आने वाले जो भक्तगण हैं, तो उनके द्वारा उसको श्रीमद् भागवतम सुनना पड़ेगा। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति, कोई प्रोफेशनल रिसाइटर है जो लक्ष्मी लेके भागवत सप्ताह कर रहा है, और वो उस लक्ष्मी का उपयोग जो है भगवान के सेवा के लिए नहीं, परंतु स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर वो कर रहा है, तो ऐसा श्रीमद् भागवतम का रिसाइटेशन हम हजारों जन्म भी अगर सुनते हैं, तो भी उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखा है। हमने देखा इससे पहले 42nd श्लोक में, बराबर 42nd श्लोक था, जहाँ पे श्रीमद् भागवतम को जो एनालॉजी दी गई है वो क्रीम के एनालॉजी दी है। श्रीमद् भागवतम जो है वो क्रीम के समान है। 43 दैट इज सन, वो एनालॉजी सन का था, एंड क्रीम का एनालॉजी जो है वो दिया है 41। ओके, थैंक यू राघव प्रभु। थैंक यू प्रभु। 41। In 41 we have got that analogy that श्रीमद् भागवतम क्रीम के समान, और उसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद 1.3.41 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये क्रीम के समान है, परंतु कोई सांप अगर दूध को स्पर्श कर लेता है तो वो दूध भले ही हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहे, वो विषैला बन जाता है, और जो हमारे ही शरीर को नरिश करने वाला, हमारे शरीर का पोषण करने वाला है, वही दूध हमारे शरीर के लिए घातक बन जाता है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत असरदार है, और हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और श्रवण करना चाहिए। परंतु ऐसा व्यक्ति जो हमेशा केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगा हुआ है, और ऐसा व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवतम रिसाइट करता है, श्रीमद् भागवतम का कथा बोलता है, जो
विशेषता मैथुन जीवन में अपने आप को पूर्णता लगाया हुआ है, ऐसे व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम अगर सुनते हैं तो उसका रिवर्स इफेक्ट है। तो श्रीमद् भागवतम हमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं देता है, हमारा अधःपतन हो जाता है उस श्रीमद् भागवतम सुन के। क्योंकि दूध किसने छुआ हुआ है? ऐसे व्यक्ति ने जो विषेला है, जिसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की और इंद्रियों को वासना जो है इसका विष अंदर फैला हुआ है। इसलिए हम किससे श्रीमद् भागवतम सुनते हैं वो हमें बहुत अच्छे से और स्क्रूटिनाइजिंगली देखना चाहिए, सूक्ष्म तरीके से देखना चाहिए कि हम किससे श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं। बहुत बार मैंने इसलिए बोला था कि अगर हम धाम में भी जाते तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे भक्त है कि हमें लगता है कि अरे ये तो पूरा शास्त्रों से बोल रहे हैं, भागवत से बोल रहे हैं, भगवत गीता से बोल रहे हैं, इनका तो कितना प्रेम है इस धाम के प्रति और भगवान के प्रति। परंतु सूक्ष्म रीति से हमें ये देखना चाहिए कि सही में ये भक्त जब बोल रहे हैं इनका कंक्लूजन और इनका निष्कर्ष क्या है। बहुत बार बोलते वक्त वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता आता है, परंतु उसका जो निष्कर्ष वो लोग लाते हैं वो एक तो निराकारवादी या फिर मायावादी, और ऐसे लोगों से हमें बच के रहना। भले ही वो हमें बाहरी रूप से साधु संत और बहुत बड़े वैरागी दिखे, परंतु अगर उनका निष्कर्ष श्रीमद् भागवतम में से जो आता है वो अगर गलत आता है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ हम संबंध नहीं बनाते, ऐसे व्यक्तियों के साथ हम संग नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों से हम सुनते भी नहीं है, क्योंकि हमारे भक्ति के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक और डेंजरस है। निष्कर्ष मतलब निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, रिजल्ट का सार क्या निकालते हैं उसको निष्कर्ष बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? No one can learn Srimad Bhagavatam who is associated with a person engaged in the sex life. Okay? This is the secret of learning Srimad Bhagavatam. अगर आपको श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है तो शुकदेव गोस्वामी के परंपरा में आने वाला व्यक्ति जो 4 नियमों का पालन करके अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित किया हुआ है, ऐसा जो सिंसियर एंड सीरियस भक्त होता है उसके ही मुखारविंद से अगर हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। अभी देखिए श्रील प्रभुपाद हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, श्रील प्रभुपाद का बोलने का तरीका, उनका जो प्रोनाउंसिएशन और डायलेक्ट था इंग्लिश का वो पूर्णतः बंगाली था, और श्रील प्रभुपाद ऐसे बड़े बड़े उदाहरण देके आवाज का फ्लक्चुएशन फ्रीक्वेंसी लाके लोगों के आंखों से पानी लाना हो गया, ऐसे श्रील प्रभुपाद बोलना बिल्कुल भी नहीं था, सीधा बोलते थे प्रभुपाद, एकदम सिंपल बट बहुत प्रखर बोलते थे, बहुत स्ट्रांग बोलते थे। chanting of Hare Krishna is the ultimate benefit. We should chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. This is what Srila Prabhupada, एकदम सिंपल बोलते थे, एकदम सादा बट बहुत स्ट्रांग बोलते थे, शास्त्रों से बोलते थे। और क्या हुआ? 1 साल के अंदर इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्थापना। क्यों? करिश्मा श्रील प्रभुपाद के अंदर स्वभाव में, उनके चेहरे के ऊपर वो तेजता, शुद्धता थी, बट बोलते वक्त जैसे मोटिवेशनल स्पीकर अपना करिश्मा लेके बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद के पास ऐसे दिखाई नहीं देगा। एक्सटर्नली हम जब अपने विजन से देखते तब नहीं दिखाई देगा, परंतु श्रील प्रभुपाद क्योंकि शुकदेव गोस्वामी के परंपरा में आने वाले हैं, हृदय से शुद्ध है, और ये सारे क्राइटेरिया जो यहाँ पे वो खुद श्रील प्रभुपाद ने फॉलो किए हुए, शुद्ध भक्त है वो भगवान की, इसलिए वो भले ही सिंपल तरीके से बोलते थे, लेकिन वो जाके सामने वाले के हृदय में जाके प्रस्थापित हो जाता था, और उसके हृदय में कृष्ण प्रेम अपने आप जागृत हो जाता था, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की शुद्धता होती है। इसलिए ऐसे युवक जो हिप्पी है, जो आहार निद्रा भय मैथुन में टोटली लगे हुए हैं, उनका हृदय परिवर्तन करने का भी जो शक्ति और ताकत है वो श्रील प्रभुपाद के हाथ में। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम अगर किसी को सुनना है तो ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो सेक्स लाइफ में बिल्कुल भी इंगेज नहीं है,
जो शुद्ध भक्त है शुकदेव गोस्वामी के लिनेज में आता है, परंपरा में आता है, और श्रीमद् भागवतम का जो भी निष्कर्ष और रिजल्ट या कंक्लूजन उसने निकाला है वो पूरा परंपरा के हिसाब से निकाला हुआ है, अपना मेंटल स्पेकुलेशन डाला है। एक बार एक इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को मिलने आया और उसने श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता और बाकी के जो ग्रंथ है वो पढ़े हुए थे। वो श्रील प्रभुपाद को पूछता है, अरे श्रील प्रभुपाद आपने अपने इतने ग्रंथ लिखे और मैंने ये जो पढ़े हैं, परंतु इन ग्रंथों में मैंने कुछ नया नहीं पाया है, ये तो वही सब कुछ आपने लिखा है जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखा है, तो आपके ग्रंथों में ऐसा नयापन क्या है? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं वही हमारा सक्सेस है। तो कॉपी इज अवर राइट। हमारे आचार्यों ने आज तक दिया हुआ जितना भी ज्ञान है, अगर हम उसको एज इट इज यथारूप पद्धति से अगर सामने रखते हैं तो वही हमारा सक्सेस है, वही हमारा वही हमारा सफलता है। और इस्कॉन इतना फला फूला और बड़ा क्यों? श्रील प्रभुपाद ने वही ज्ञान दिया जो आचार्यों से और गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ है, कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का सक्सेस उसमें है कि उन्होंने आचार्य ने दिया हुआ ज्ञान आगे जाके बढ़ाया। गुरु परंपरा का मतलब ही वही रहता है, गुरु शिष्य परंपरा का, कि जो आचार्यों ने दिए हुए ज्ञान है उसमें अपना मेंटल स्पेकुलेशन, अपना खुद का कुछ तो तार्किक ज्ञान डाल के फिर वो देखो मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, इतना इंटेलेक्चुअल बोलता हूँ, नहीं, जो लिखा है वो दिया। ठीक है, उसके बाद श्रील प्रभुपाद बोलते हैं दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है, यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया है श्रीमद् भागवतम आपको जानना है तो। अभी देखिए श्रीमद् भागवतम के महिमा में भी गुरु शिष्य परंपरा का महिमा कैसे आता है। भगवान कृष्ण ने चतुर्श्लोक में ब्रह्मा जी को पूरा श्रीमद् भागवतम और वैदिक ज्ञान दिया। वो आएगा श्रीमद् भागवतम में आगे, चतुर्श्लोक श्रीमद् भागवतम बोलते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को वही ज्ञान दिया, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को वही ज्ञान समझाया। जब नारद इतने सारे पुराण लिखने के बावजूद भी व्यासदेव जो है अपने आश्रम के अंदर नैराश्य रूप में बैठे हुए थे, नारद मुनि के आश्रम में आते और बोलते, अरे आपने श्रीमद् भागवतम नहीं लिखा है, जो भगवान का स्तुति करता है वो भागवतम लिखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हृदय से फुलफिलिंग लगेगा कि मैंने कुछ किया है करके। तब जाकर व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम लिखा। वो ही श्रीमद् भागवतम व्यासदेव ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को दिया और शुकदेव गोस्वामी ने वही ज्ञान परीक्षित महाराज को सुत गोस्वामी प्राप्त कर दिया और सुत गोस्वामी अपनी वही ज्ञान शौनक ऋषि को बोल दिया। तो इसलिए यहाँ पे सुत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं शौनक ऋषियों को कि मैंने ये श्रीमद् भागवतम मेरे गुरु शुकदेव गोस्वामी से सुना था जब वो परीक्षित महाराज को बता रहे थे, अभी वही ज्ञान यथारूप एज इट इज मैं आपको देने वाला हूँ, कृपया उसको सुनिए और मुझे जितना रियलाइज हुआ है, मुझे जितना साक्षात्कार हुआ है इस ज्ञान का, उस पद्धति से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। श्रीमद् भागवतम के एक बहुत सुंदर से तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद सेल्फ रियलाइजेशन की डेफिनेशन देते हैं, आगे आएगा। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या? कोई भी प्रचारक, कोई भी स्पीकर, प्रवक्ता, वक्ता, इसको सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या? शास्त्रों में दिया हुआ जो ज्ञान है वो सामने बैठे हुए श्रोतागण का जो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लेवल है, पात्रता है, उस हिसाब से वो उनको डिलीवर करता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज व्हाट? अ स्पीकर डिलीवर्स द नॉलेज ऑफ एंटायर स्क्रिप्चर अकॉर्डिंग टू द listeners, those who are present in front of them, him, so that they can digest the knowledge of Vedic scriptures in digestible way। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है, माता जो रहती है ना, अगर उसको अपने बच्चे को मेडिसिन खिलाना है, औषधि खिलानी है
और बच्चा खाता नहीं है, तो क्या किया जाता है, उसका पाउडर बना के उसको एक तो आप खिचड़ी में डाल के या फिर उसको जो दाल वगैरह पसंद है उसमें दाल खिचड़ी में डाल के उसको देते हैं करके, और उसको लगता है कि आपने तो दाल खिचड़ी खा रहा है, परंतु साक्षात स्वरूप में वो क्या खा रहा है, औषधि खा रहा है। तो उसी पद्धति से वक्ता क्या करता है कि सामने जो श्रोतागण बैठे हुए हैं वो किस पद्धति से श्रीमद् भागवतम भगवद गीता का जो संदेश है वो जान सकते हैं या उसको समझ सकते हैं, उस पद्धति से वो उसको देता है ताकि वो उसको पचा पाए, उसको समझ पाए। तो इसलिए जब तात्पर्य लिखते श्रील प्रभुपाद तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण देते, गाड़ी का उदाहरण दे रहे श्रील प्रभुपाद, तालाब का उदाहरण दे रहे, सूर्य का उदाहरण दे रहे, इंडस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहे, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेसी, ये सारे उदाहरण दिए। अभी श्रीमद् भागवतम में कभी आपको ये कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी ये सारी चीजें नहीं दिखाई देगी या सुनाई देगी, परंतु श्रील प्रभुपाद तात्पर्य फ्लाइट का उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद। तो ये मॉडर्न जमाने के उदाहरण है, परंतु हम लोग क्योंकि 2025 में रहते हैं तो हमें ये समझ पर उस पद्धति के उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने दिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद एक परफेक्ट वक्ता है, क्योंकि उनको पता है कि सामने वालों को क्या समझ में आएगा। उसी पद्धति से श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत सुंदर सा पॉइंट लिखते हैं। One should hear with the rapt attention from the real person, and then he can at once realize the presence of Lord Krishna in every page of Srimad Bhagavatam. That is the secret of Srimad Bhagavatam. Then हम बोलेंगे, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम लोगों को श्रीमद् भागवतम सुनते वक्त बहुत रैप्ट अटेंशन से, या फिर उसको हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला गया है यहाँ पे, सावधानी पूर्वक। हमें श्रीमद् भागवतम जब हम सुनते हैं तब हमें सावधानी पूर्वक और पूर्ण मन लगा के सुनना चाहिए। परंतु कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सावधानी पूर्वक श्रीमद् भागवतम सुन सकता है? जो व्यक्ति का मन शुद्ध है। कौन से ऐसे व्यक्ति का मन शुद्ध रहेगा? जिस व्यक्ति के क्रियाकलाप जो है वो शुद्ध रहेंगे। कौन से व्यक्ति के जीवन के क्रियाकलाप बहुत सुंदर और बहुत प्योर हो सकते हैं, बहुत शुद्ध हो सकते हैं? जो व्यक्ति का इंद्रिय और एक्टिविटीज दिन का जो ये वो प्योर हो सकते। हाँ, कौन से व्यक्ति के कौन से व्यक्ति का मन शुद्ध हो सकता है? जिस व्यक्ति के जीवन की क्रियाएं जो है वो शुद्ध होती है। और कौन से व्यक्ति की क्रियाएं शुद्ध हो सकती है? जो व्यक्ति अपने आहार, निद्रा, भय और मैथुन में शुद्ध होता है। A person can give that attention to Srimad Bhagavatam who is very pure in his mind and his thoughts. One who is very clean and pure in his action, only his mind can be pure, and he can give that attention to Srimad Bhagavatam. Whose action can be very pure, whose eating, meeting and sleeping, defending can be the pure. That and that person can only give that attention to Srimad Bhagavatam. That's what Srila Prabhupada is mentioning, that no one can be pure in the mind who is not pure in action. No one can be pure in action who is not pure in eating, meeting, sleeping and defending. So that's why आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इसमें हमें युक्त आहार विहार से रखना चाहिए। हमारा आहार सात्विक होना चाहिए। चाय कॉफी पीना, कांदा लहसुन खाना, बाहर जाके किसी भी व्यक्ति ने जो पूर्णता करनी है और भौतिकवादी है उसके हाथों से बनाया हुआ भेलपुरी, शेवपुरी, पानीपुरी, कच्ची दाबेली, वड़ा पाव, मिसल पाव, इडली, डोसा, सांभर, सारे मेनू कवर कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, ये खाना, दैट्स नॉट रिकमेंडेड। उससे हमारा जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए हमारा आहार हमारा बहुत अच्छा रहना चाहिए। उसमें कांदा लहसुन भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो रजोगुणी रहता है बहुत। वो उसमें मशरूम, फिर आपका मांस, ये सब चीज़ें
आपका मासी मेरा हिंदी का इश्यू चल रहा है फिर भी आज मैं बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम कल रील बना रहे थे और रील बनाते वक्त मैंने देखा और भगवान रामचंद्र ने जब पत्थर डाला तो वो डूब गया करके, अरे ये करके शब्द क्यों आया बीच में करके, अभी भी वापस आया वो। वो आपका हमेशा आता है। हाँ ना, बाप रे, देखा मुझे पता नहीं था, अभी मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे हिंदी से आपका हिंदी PhD लेवल, हाई लेवल। तो फिर भी मैं जैसे सुनता हूँ विष्णु का वो गौरांग प्रभु वगैरह इनका जो हिंदी सुनता हूँ ना प्रभु इसका तमिल बैकग्राउंड, तो उनका हिंदी क्या है, बाप रे अमेजिंग। जून में रामायण सुना है ठीक है, गौरांग प्रभु जी में। हाँ हाँ, बहुत सुंदर हिंदी बोलते हैं रामायण, इंग्लिश भी बहुत इंग्लिश अच्छा भी बोलते अच्छा हैं, है, हिंदी भी। हिंदी भी अच्छा है उनका, तमिल भी अच्छा है। तमिल में सुना नहीं, हाँ, but हिंदी में एक हिंदी क्लास very है good. तमिल, हिंदी and English class. तो आहार, निद्रा, निद्रा भी व्यक्ति का बहुत प्रॉपर होना चाहिए। 6 से 7 घंटे तक व्यक्ति ने सोना चाहिए, वो भी 9 या 10 बजे तक व्यक्ति ने सो के सुबह 4 साढ़े 4 बजे सो उठना चाहिए। उसके बाद दिन में भी अगर आप 4 घंटा सोते हो तो आलस का कहर हो जाएगा। इफ यू स्लीप टू मच you will become lazy, and if you sleep too less you will become crazy. So युक्ता आहार विहारस्य, निद्रा भी हमारी कंट्रोल में होनी चाहिए। आहार निद्रा, भय, डिफेंस, गुस्सा करना, अपने आप को सिक्योर करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड मैथुन, मैथुन मतलब ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ, इन तीनों को नो सेक्स इंटेलिजेंस, बिल्कुल भी मैथुन नहीं करना। गृहस्थ व्यक्ति को मैथुन का कंसेशन थोड़ा है, परंतु वो केवल बच्चों की उत्पत्ति करने के लिए, कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन, कृष्ण भावना भावित बच्चे पैदा करने के लिए केवल उसने मैथुन का सहारा लेना चाहिए, अन्यथा बाकी टाइम पे बिल्कुल भी नहीं। इस प्रति के शास्त्र हमें बताता है, तभी जाके हम श्रीमद् भागवतम को सुन सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के हर एक पेज में अगर आपको कृष्ण को देखना है तो श्रीमद् भागवतम को आपको सावधानी पूर्वक सुनना पड़ेगा। अगर श्रीमद् भागवतम को किसी को सावधानी पूर्वक सुनना पड़े तो उसका हमेशा उसको मन शुद्ध रखना पड़ेगा। किसी को अपना मन शुद्ध रखना है तो उसको अपने दैनंदिन क्रियाएं शुद्ध रखनी पड़ेगी, और जिस व्यक्ति को अपनी दैनंदिन क्रियाएं शुद्ध रखनी है उसको अपना आहार, निद्रा, भय और मैथुन जो है उसको शुद्ध रखना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तब जाके व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के हर एक पन्ने के ऊपर कृष्ण का साक्षात्कार करवा सकता है अपने आप। हर एक पन्ने पे श्रीमद् भागवतम के हर एक पन्ने के ऊपर वो कृष्ण को देख सकता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आज अल्प विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।